Okay, we are going to revise the topic of production function today. ठीक है, unit of production, first chapter, production function. Producer is the one who produces goods and services. He converts input into output, right? So what exactly is production function? Production function implies the relationship between input and output. That is how with input output reacts. ठीक है, output all of us know is a function of, which means is a result of, which means it depends upon input. So what is the relationship between input and output? That is explained by the production function. There is an economist named as Kutsionis. According to him, production function is the technical relationship between input and output. We can also explain this relationship as Qx is a function of L and K, where Q refers to output, X refers to commodity X, is a function of L. L refers to labor and K refers to capital. So output produced of commodity X is a function of labor and capital, which simply means that output of X produced depends upon inputs, labor and capital. Whenever we use this term is a function of, it implies it depends upon, right? So we have in our syllabus short run production function. Basically production function is of two types: short run production function, long run production function. So it becomes essential for us to identify two time periods. Time periods can be classified into short run and long run. Short run refers to that period of time where one factor of production is variable and rest of the factors of production are fixed. ठीक है? That is, if the producer wants to increase his output in the short period of time, he has say two factors of production, out of which one is variable, another is fixed. So he can increase his output only by making change in variable factor of production, because time is short enough, time is not long enough to make change in all the factors of production. So that's how we identify short period in which some factors of variable are fixed and one of them is variable. Whereas long run, long period of time refers to that period of time where all the factors of production are variable. It simply means that if the producer wants to increase his output, he can do so by making change in all the factors of production. चाहे लैंड है, चाहे लेबर है, चाहे मशीनरी है, उसके पास इतना टाइम है, इतना सफिशिएंट टाइम है कि उस टाइम पीरियड में वो नया लैंड भी खरीद सकता है, नई मशीनरी भी खरीद सकता है. तो अगर उसको आउटपुट बढ़ाना है, he can do so by making change in all the factors of production. Clear हो गया? So we have in our syllabus short run production function. ठीक है? अब आपको factors of fixed factor of production क्या होता है, variable factor क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए. But a fixed factor of production which remains same. ठीक है? अगर हमें आउटपुट बढ़ानी है तो भी हम इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है? सो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज दैट which cannot be changed in the short period of time.
राइट। ये जो डिस्टिंक्शन है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की, वो सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड में है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। सो वी कैन नॉट गिव एग्जांपल कि हाँ जी मशीनरी एक फिक्स्ड फैक्टर है। मशीनरी बेटे कब फिक्स्ड फैक्टर है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स्ड फैक्टर है। सो हाउ डू वी क्लासिफाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? Fixed factors of production are those factors of production which remains same, which do not change with the change in the level of output in the short run. Whereas variable factors of production are those factors of production which can be changed to change the variable factor of production. ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बेटे जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। ओके, बिफोर दैट लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तभी समझ में आएगा अगर आपको बेटे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता होगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो। तो जैसे बेटे आगे हमने कॉस्ट का भी चैप्टर किया, रेवेन्यू का भी चैप्टर किया, उसमें हमने यही कहा कि 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक टोटल वाला, एक एवरेज और तीसरा मार्जिनल। ऐसे किए ना उसमें, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू में भी ऐसे किया, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। सिमिलरली बेटे प्रोडक्शन में भी ऐसे ही है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे। सबसे पहले बेटे टोटल प्रोडक्ट, इसको हम टोटल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑल इंप्लाई सेम थिंग। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट इज sum total of goods and services produced by the producer during a given period of time, right? So total product refers to sum total of goods and services produced by the producer during a given period of time. How it is calculated? Better it can be calculated if you are given average product, it can be calculated by using this formula, AP into Q, where A refers to average product and Q refers to number of units of output produced. Clear? Or if you are given marginal product, then you can calculate total product by taking sum total of marginal product. So depending upon the information given to you, you can find it out. Second concept is average product. Average का मतलब कि जब आप बेटे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाकर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज एक वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। सो हाउ डू वी डिफाइन एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेटे फर्म में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो मिलके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑन एन एवरेज एक वर्कर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है? स्पीक अप। 100 upon 10, that is 10 units. This is average production. What is average product? It is output produced per unit of variable factor. ठीक है, सो ये कैसे कैलकुलेट हुई बेटे? What is 100? 100 is total product. What is 10? Number of labor, that is L.
So average product is calculated as follows. Total product divided by L. What is L? Variable factor. So what is average product? It is the per unit, या output produced per unit of the variable factor. ठीक है, सिंपली स्पीकिंग ऑन एन एवरेज एक वर्कर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, राइट क्योंकि प्रोडक्शन तो बेटे सारे फैक्टर्स मिलके करते हैं, तो हम ये इंटरेस्टेड है जानने में कि ऑन एन एवरेज एक की कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसको टोटल को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है बेटे, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट, MP. व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट बेटे? जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो हम और से और वेरिएबल फैक्टर की डोजेस देते जाते हैं. अगर एक प्रोड्यूसर को शॉर्ट पीरियड में अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसको वेरिएबल इनपुट बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, सो इनपुट कौन सा है यहाँ पे? वेरिएबल फैक्टर है. जब वो उसकी डोजेस बढ़ाता जाता है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता जाता है. बढ़ता है या नहीं? आप बेटे इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा. तो एक यूनिट इनपुट के बढ़ाने से टोटल आउटपुट में कितना चेंज आता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे हमने लास्ट केस में किया था ना कि 10 वर्कर्स मिलके 100 यूनिट्स बना रहे हैं. 10 स्टूडेंट्स आ रहे थे, मैंने उनको चार्ट्स बनाने के काम पे लगा दिया और टोटल 100 चार्ट्स हो गए. एक और बच्चा आ गया अगले दिन, ठीक है, अब चार्ट्स की टोटल प्रोडक्शन होगी 110 चार्ट्स. नेक्स्ट डे एक और स्टूडेंट आ गया, तो 12 स्टूडेंट्स ने मिलके बना दिए 120 चार्ट्स. ठीक है, अब देखो जब एक और स्टूडेंट की एडिशन हुई आपकी क्लास में, तो टोटल आउटपुट में इंक्रीज आया. कितना इंक्रीज आया? 10 यूनिट्स. ये इस 11th स्टूडेंट की क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन. सो व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? But it is addition made to the total product. This is total product, this is labor. This addition made to the total product when one more unit of variable factor is employed. Addition made to the total product when one more unit of variable factor is employed. Clear? So how do we calculate marginal product? बेटे इसका डिफरेंस इसके साथ, ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट व्हेन 11 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो 11 को अगर हम n लिख दें, अगर हमें nth वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो हम n वर्कर्स की टोटल प्रोडक्ट को n-1 वर्कर्स की टोटल प्रोडक्ट से माइनस कर देते हैं. यस, ये तब फॉर्मूला यूज होता है जब हमारे पास कंसेक्यूटिव, जैसे ये 11 वर्कर्स हैं, ये 10 वर्कर्स का डाटा अवेलेबल है. अगर हमारे पास 11 के बाद 10 का डाटा अवेलेबल नहीं है, देन वी मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, जो डेल्टा टीपी. लेट अस सपोज आपके पास 10 वर्कर का डाटा अवेलेबल है और 14 वर्कर्स का डाटा अवेलेबल है. तो 14 ने कितनी प्रोडक्शन की माइनस 10 ने कितनी की, वो हो गया डेल्टा टीपी. डेल्टा रेफर्स टू चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा एल. नंबर ऑफ वर्कर्स भी बढ़ गए ना, तो यहाँ पर तो 1 था, तो 1 से डिवाइड किया ही नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा वर्कर्स हैं क्योंकि बीच वाला डेटा अवेलेबल नहीं है. तो डेटा एल, डेल्टा एल, राइट. सो बेटे दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट्स: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, you can be asked the relationship between these 3 concepts with the help of schedule or with the help of diagram. इनके बीच की रिलेशनशिप या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेटे एक ही बात है. ठीक है, दोनों में हमने सेम डाटा करना है, तो मैं दोनों आपको एक बारी करवा देती हूँ. फर्स्टली वी विल बी कवरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी.
So for that we have to take, we have to suppose something, we have to take an assumption. So let us suppose our producer is a farmer. हमारा जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो कौन है? फार्मर है. और फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है. व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही इज मेकिंग यूज ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड labor, because it is a short period of time. So of course, which of these is a fixed factor of production? Land. And which is the variable? Labor. Which means when he wants to increase his production, he can increase his production only by employing more and more labor, right? So let us see the relationship. हमने suppose किया farmer है, उसके पास 1 एकड़ का लैंड है, ठीक है. अब ये लैंड क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इसको हम फिक्स्ड फैक्टर मानेंगे. दूसरा उसका फैक्टर्स जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है? लेबर है, क्योंकि लेबर को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, इसको हम वेरिएबल फैक्टर मानेंगे. वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? व्हीट. व्हीट को हम क्विंटल्स में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसकी रुपी वैल्यू नहीं लेंगे, हम इसकी यूनिट्स लेंगे. And then we can find out marginal product, and then we can find out average product. So you can make the table side by side. Land remains fixed. So in case he wants to increase his production, he is not able to increase the land area because time period is short enough. In the short period, land is a fixed factor of production. So to increase production, he will employ more and more units of variable factor. Right? So let us see how the total output changes with change in the labor. That is, when he employs more and more doses of labor on a particular piece of land, of course, total output will increase. But let us see the behavior of total product, how it will change. So, this is the data: 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14. So, if you find it difficult to learn, even though इस टाइम पे लगता है it's very easy to learn, लेकिन एग्जाम्स में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये वाला कॉलम नहीं लर्न करना, हम एमपी का कॉलम लर्न करेंगे. दैट इज वेरी इजी टू मेमोराइज. मैंने लर्न कराया हुआ है आपको. स्पीक आउट. 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, -1. सो बेटे आपने पहले ये लिख लेना है, फिर टीपी क्या होता है? सिग्मा एमपी. तो इसको ऐड करते जाओ. 2, 2 + 3, 5, +4, +3, +2, +1, +0, -1, 14. ठीक है. Now the question is, how do we calculate average product? What is average product, bete? It is TP upon L. This is TP, this is L. 2 divided by 1, 5 divided by 2, 9 divided by 3, this is 2.5, 2.1, 1.8. So let us analyze the relationship bit. We can see as the variable factor increases, total output also increases till this point. But this is not analysis.
अगर हम कहें ये बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है. वी हैव टू सी व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी, किस तरह से बढ़ रहा है. सो लेट्स सी. पहले 0 से 2 हो गई आउटपुट, 2 से 5 यानी 3 यूनिट्स का इंक्रीज आया, 5 से 9 यानी 4 यूनिट्स का इंक्रीज आया. यानी टिल दिस पॉइंट जैसे जैसे हम एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर वेरिएबल फैक्टर की डोजेस बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है. पहले 0 हो रही थी, 2 क्विंटल बढ़ी, फिर 3 क्विंटल बढ़ी, फिर 4 क्विंटल बढ़ी, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है. ठीक है. आफ्टर दैट बेटे अगेन सी, जब हमने 4th वर्कर लगाया आउटपुट बढ़ी तो सही, लेकिन कितने क्विंटल्स बढ़ी, 3. फिर और वर्कर लगाया, ओनली 2 क्विंटल्स. 6th वर्कर के लगाने से सिर्फ 1 क्विंटल बढ़ी. यानी इसके बाद जब हमने 4th वर्कर लगाना शुरू किया, आउटपुट इज इंक्रीजिंग नो डाउट, बट इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. पहले 3 क्विंटल, फिर 2 क्विंटल, फिर 1 क्विंटल. फिर ये जब वर्कर लगाया ना 7th, तब आउटपुट बढ़ी ही नहीं. यानी जितना 6 वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे थे उतने ही 7 वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. यानी ये आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन है, इससे ज्यादा आप प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते. बट फिर भी अगर आप और वर्कर काम पे लगा देते हो बेटे, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन आउटपुट. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, आउटपुट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है. इट्स जस्ट लाइक मैंने आपकी क्लास में 7 स्टूडेंट को काम दिया, उन्होंने मिलके 15 चार्ट्स बनाए. ठीक है. मैंने अब 8th बच्चा भी साथ में लगा दिया, आप लोग शरारतों में लग गए. अब 8 वर्कर्स ने मिलके अगले दिन सिर्फ 14 चार्ट्स बनाए. क्यों? क्योंकि 8th वर्कर के आने से एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई. ठीक है. रिक्वायर्ड इतने थे, जब एक और आ गया तो उससे आपस में इनडिसिप्लिन हो गया, बातों में लग गए और टोटल आउटपुट कम होने लग गई. ठीक है. दिस इज द बिहेवियर ऑफ टीपी. नाउ लेट अस सी द बिहेवियर ऑफ टीपी अलोंग विद एमपी. इनके बीच का रिलेशन क्या है बेटे? एमपी होता क्या है? एमपी बेसिकली इज द रेट एट विच टीपी इज इंक्रीजिंग. तो जब हम कहते हैं ना टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, तो हमें यहां से देखने की जरूरत नहीं होती कि अच्छा 2 - 0 2 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 9. आप एमपी को देखो, एमपी उसका रेट ही बता रहा है. ठीक है. तो जब हम कहते हैं कि टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, तो इट मींस एमपी इज इंक्रीजिंग. When we say TP is increasing at diminishing rate, it means MP has to be diminishing. जिस रेट पे वो बढ़ रही है ना, ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ये डिमिनिश कर रहा है, क्योंकि इसी को तो ऐड करके टोटल लिया है. गॉट इट? फिर देखो जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी 0 है, यानी 7th वर्कर ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया. 6 वर्कर्स भी मिलके 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 7 वर्कर्स भी मिलके 15 यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच मीन्स मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0 व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. फिर बेटे जब टीपी फॉल करेगी तो एमपी नेगेटिव हो जाएगी. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी. जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने स्केल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट विदाउट स्केल, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ द डायग्राम साइड बाय साइड. What will we take on x-axis? First thing which is required when we draw diagram is to label the diagram. मैंने आपको पहले भी बहुत बारी, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि भाई आपको क्या लेना है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पर, 2 बातें आपको माइंड में आनी चाहिए. एक, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट. दूसरा, जौन सा कर्व बनाना है वो यहाँ पे आएगा.
So we are discussing the relationship between TP and MP. So TP and MP variables will be taken on y-axis. These depend upon variable factor. So this will be taken up on x-axis. You can draw the diagram. Okay. So in order to show the relationship, we can draw our diagram in this way. अदरवाइज हम बेटे जब स्केल से ड्रॉ करते हैं ये चीजें बाद में करते हैं, लेकिन अपना डायग्राम ठीक बनाने के लिए हम कुछ चीजें मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अभी आपको स्टेजेस नहीं लिखनी है, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लिखते होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये मालूम है कि इनिशियली जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की डोजेस इंप्लॉय करते जाते हैं, टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। इसका मतलब टीपी का अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग कैसा हो सकता है? ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। क्योंकि टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है तो कन्वेक्स होगा, और ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब जीरो लेबर लगाई तो टीपी जीरो है, ठीक है। तो पहले ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, तो यहां तक आप इसको कॉन्वेक्स बना दीजिए। Thereafter, TP will increase at diminishing rate. अभी भी इंक्रीज कर रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन क्योंकि डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है तो कनकेव होगा। Thereafter, when last 8th worker is employed, total product starts falling. फॉलिंग है तो ये भी फॉल हो जाएगा टीपी का। क्लियर? अब एमपी कब बनाएंगे? एमपी जब तक ये देखो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, एमपी इंक्रीज करेगा, ठीक है, मैक्सिमम तक आ जाएगा। जब टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, एमपी फॉल होना लग जाएगा, और जहां पर टीपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी जीरो, यानी इसको यहां से मिला। जब टीपी फॉल कर रहा है, एमपी जीरो। This point where convexity converts itself into concavity is known as point of inflection. मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता भी होता है, convexity converts itself into concavity is known as point of inflection. तो बेटे इसमें से आप रिलेशनशिप के पॉइंट्स निकाल सकते हो। So long as TP increases at increasing rate, MP rises. When TP starts increasing at diminishing rate, MP starts falling. When TP is constant and maximum, MP becomes zero. When TP starts falling, MP becomes negative. This is the relationship between TP and MP. Now we can do the relationship between MP and AP. MP and AP. So बेटे वो भी हम बिना स्केल के डायग्राम्स बनाएंगे। You have to make the diagrams with me. Variable factor, here MP and AP. जब भी बेटे आपको एवरेज और मार्जिनल कर्व, चाहे कॉस्ट के, चाहे रेवेन्यू के, चाहे प्रोडक्ट के, किसी के भी बनाने, सबसे पहले एवरेज वाला ड्रॉ करना, ये याद रखना, इट्स अ टिप। एपी कर्व कैसा होगा देखो, एपी राइज कर रहा है 2, 2.5, 3, 3.3, यानी अपवर्ड स्लोपिंग। Therefore, after it starts falling, which means then downward sloping. बढ़ रहा है, गिर रहा है। एमपी कर्व कैसा होगा? राइज कर रहा है। Okay, we'll do this tomorrow.